हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट IUPAC naming. So basically what IUPAC full form represents, IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. So this is what the name goes. So we already हमने कुछ इसका part already we have discussed, but today we'll see more examples and try to see again from basics to today we'll basically cover all parts of IUPAC naming. So basically what IUPAC naming represents is naming of all hydrocarbons which we are studying. So for that हमको सबसे पहले obviously we have to understand how carbon it's linked. That's very important. If you see the carbon, as you see, is atomic number 6. So basically when we write valency, so it will go like 2, 4. So if you see, it has 4 valence electrons. So अगर मैं इसका structure बनाऊं, if it is this is the nucleus, this has to be the nucleus, और then ये इसका fourth shell है, and then this is the outer motion. And electrons, अगर आप यहाँ electrons draw करेंगे, obviously first 2 electrons will come in the center like here, and then जो बाकी है, those 4 electrons will be on the outer periphery like this. So now to complete its octet, it needs more 4 electrons so that it will become more stable. So that's the whole हर एक एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल बने, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, नहीं तो ऑक्टेट. और हमने ऑलरेडी देखा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए टू शेयर और टू गेन 4 it's not possible for electrons, so it goes for sharing. So basically it makes covalent bonds. So covalent bonds it makes, and obviously that's the reason it has 4 sharing electrons, has to make 4 covalent bonds. It's also that's the reason it's known as tetravalent. Tetravalent element. It's a tetravalent element. For example, अगर हम मेरे को हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ना है, so hydrogen is, I know hydrogen is monovalent. Hydrogen is monovalent, means it can only share 1 electron. So that is monovalent. So if I had, मेरे को अगर हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ना है, तो I have to take 4 hydrogen के electrons, and that's how it will get complete. So this will like the hydrogen will be joining 4 elements. So this will be hydrogen basically. This will be hydrogen. This will be hydrogen. This will be hydrogen. So अगर मुझे इसको सिंपल स्ट्रक्चर में दिखाना हो, लाइन में दिखाना हो, तो दिस एज सिंपल एज इट, बिकॉज उसमें से दिस इज कार्बन एंड हियर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. तो मेन थिंग व्हाई आई एम शोइंग यू, ये चीज याद रखो, बिकॉज व्हाइल नेमिंग ना, यू शुड अंडरस्टैंड कार्बन को 4 स्टिक्स कम्स आउट फ्रॉम द कार्बन. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. और हाइड्रोजन से 1 स्टिक आती है. So if 4 sticks are there, that means it's complete. That means it's complete in the octet and stable. So similarly then जो हमारा monovalent है, उसमें single it gets single stick like monovalent. Monovalent के लिए you need a single stick will come out, and there is something known as divalent also. Divalent में ऑक्सीजन आता है, उसके 2 स्टिक्स बाहर आने चाहिए. बेसिकली शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन 2 6 है. सो बेसिकली इट नीड्स मोर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 6 ऑक्टेट.
So this is the valency 2. And then comes trivalent also. Trivalent में आता है नाइट्रोजन 3 sticks. Q25 because it needs 3 electrons, तो इसका valency is 3. And obviously then comes जो हम डिस्कस कर रहे हैं, it is tetravalent. Tetravalent. तो tetravalent का मतलब ये नहीं कि कार्बन 4 दिखाएगा. This is a wrong way. Carbon will show like this on 4 sides. So this is some basic concepts or understanding which we must have before understanding the IUPAC's naming. So इस compound को हम CH4 करके भी लिख सकते हैं, which is methane. So I hope यहाँ तक आपका it's clear till here. जैसे हमने अभी ये कार्बन का देखा था, so basically 4 sticks है तो हर जगह से होगा, लेकिन अगर suppose कार्बन will make double bond with one more carbon, so अभी 2 तो स्टिक इधर चलेगी, तो अब एक ही स्टिक इधर और इधर रहेगी, और यहाँ पे obviously because we are discussing hydrocarbons, तो hydrogen will come here. Now if carbon is having 3 bonds, then only one stick will come, which will be hydrogen. So basically same thing, 4 sticks should come out from the carbon. So that's the basic concept. So after that ये भी हमने देखा था, how many carbons are there, उससे ऊपर भी how we can decide. If it is 1, then it will come meth. If it is 2, it comes eth. So like that also we saw, and we also saw some examples how hexane, like we'll say prop ka, because already 2 examples have been. Prop ka means you have to just write prop because there are 3 carbon. अगर वहाँ single bond है, carbon has only single bonds with a carbon or carbon can have with hydrogen, then obviously it is, you have to apply suffix is ane, so it will propane. It's very simple. Agar carbon is sharing double bond, then it will come ene. It will come propene. You have to apply prop. This is the prefix and this is the suffix. And if carbon is having triple bond, obviously then the name will come propyne. So this is how the naming will go. These are the suffix which will be applied. Ane, Ene, this all I think is clear, and depends on the bond which the carbon is having. And then same for butanol, and then we saw the formula also, like for propane also, there are 3 carbon atoms, so it will come C3 and H, so it will 2,8. Similarly for this also C3 H6, here also C3 is 2 minus, means here H4. So this is how you derive the formula and how you write the names, because yes, some name, this is all going to get, we are going to use it in our naming system, IUPAC naming. So you should know all carbon कितने नंबर हो उसका, फिर ये this is like root name, उसका क्या बनेगा, फिर bond के हिसाब से उसका नाम क्या आएगा, Ane और Yne, depends on the which bond carbon is having, और how many carbon atoms कितने हैं उसके अंदर, then it will depend which name will come. Obviously it is not limited to deck, it goes on. It can you can just name undeck, dodeck, trideck, tetradeck, pentadeck, so it goes on. But आपके 10th standard तक obviously important till 10 is there, so you must remember this list of word roots. And then obviously you should know this also about functional group. This is very important. आपको functional group पता नहीं होगा तो करेंगे कैसे? तो functional group basically what a functional group does. Functional आपने अभी देखा now when functional group is added to this carbon chain, एक तो इसका property पूरा change हो जाता है, obviously the naming will also change. And you should know this functional group, इसमें जो सबसे पहले है which is halogen, यही एक है जो इसके prefix में लगेगा, बाकी सब इसके suffix में लगेंगे. It will be a second name. For example, जैसे if this is there, and obviously this I had already corrected, this is fluoro. You can correct in your book also. This is not chromo. And so this image is from your textbook. Please refer to textbook also. So and यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपके prefix में लगता है. For example, अगर आपका यहाँ पे any compound which will come, it will become like bromo, chloro, bromomethane, chloroethane, something like that.
ये फिक्स में लगता है, ये पहले लगेगा उसमें। देन द नेम विल कम ऑफ कार्बन, जो जितने नंबर कार्बन के उसके रहेंगे, दैट नेम विल कम। दिस सेकंड इज अल्कोहल, दे इट विल बी लिंक्ड, स्ट्रक्चर विल बी OH, कंडेंस फार्मूला को OH लिखते हैं। एंड इसमें OH में E के बदले ऑब्वियसली यू शुड रिमेंबर, देखो E हर जगह है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो ANE है, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो ENE है, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE है। अभी ये जो E है ना बेटा, इस E को रिप्लेस करेगा। अभी जो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, यू नो दैट इज दिस E will get replaced. That will depend on which functional group you have. This E gets replaced. This E will get replaced and the name will come OL. अगर अल्कोहल होगा OL will come. अगर आपका एल्डिहाइड होगा तो the name will come AL. E will get replaced with AL. और अल्कोहल एल्डिहाइड। और अगर आप देखेंगे यू नो दिस aldehyde and carboxylic acid, if you see this carboxylic acid, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एंड तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा आइक, E को रिप्लेस करेगा आइक, it's oic, it's oic acid. This will come for carboxylic acid. So this we saw aldehyde also, we saw alcohol also. Then comes ketones. Ketones में obviously E will be replaced by O and E. और ये सब किधर है बेटा, ये सब फिक्स में लग रहे हैं, एंड में लगेगा। सो बेसिकली यही 5 आपको इंपॉर्टेंट है आपके 10th के हिसाब से। सो फर्स्ट इज जो ये सुफिक्स में आपके प्रीफिक्स में लगेगा, दिस इज ब्रोमो क्लोरो आयोडो, एंड दिस इज जो आपके एंड में लगेगा विच इज इन द प्रीफिक्स विच इज OL फॉर अल्कोहल, AL फॉर एल्डिहाइड। याद रखिए फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH। मैं आपको ये क्यों दोनों का कंपैरिजन होता है, इजी टू रिमेंबर, ये भी C डबल बॉन्ड O है लेकिन ये OH है, ये H है, तो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलमोस्ट सेम। easy to remember for you. And ketone is C double bond O, and इसका ONE लगेगा 1. So that's how you can remember these all these things, because it will help us to how you can name in IUPAC naming. So I hope this is clear. Alcohol, aldehyde, अगर कोई भी ये functional group हमारी chain में लगा होगा तो how we can name it, it's very easy, nothing to worry. We'll see some examples. So let's start with some example. First example we see of let's take example of hexane, where we have 6 1 2 3. So I have 6 carbon atoms. तो now just understand, ये जो dash है ना, it's automatically means वहां पे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन से कितने आने चाहिए स्टिक्स, 4 स्टिक्स होने चाहिए। सो सी ऑल 4 स्टिक्स आते हैं। अभी जिस स्टिक्स पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, इट्स बाय डिफॉल्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन। मैं क्यों अभी मैं यहां पे कुछ अटैच करूंगा, आई विल अटैच Cl। मैंने क्या अटैच किया, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, मैंने यहां पे Cl अटैच किया। Now I have attached Cl. So what will be the name? That's what we are going to see, how to see IUPAC names. So first obviously हमको क्या देखना होता है, longest chain। तो यहाँ पे तो कोई confusion नहीं है, this is the single straight line, so this is the longest chain. Now लेकिन इसको जो we consider it as a branch, तो इसलिए the naming starts with the nearest branch। तो naming इसका शुरू होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्लोरीन के क्लोजेस्ट 1 ब्रांच, इसको आई विल कंसीडर एज एट 1 पोजीशन क्लोरीन इज देयर। सो मेरे को इसको जब अगर नेमिंग करना है, हाउ विल आई नेम इट, इट विल नेम एज क्लोरोहेक्सेन, बिकॉज व्हाई इट इज एट 1, सो आई डोंट हैव टू राइट, यू नो, इट विल डायरेक्टली कम क्लोरोहेक्सेन। 1 लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज यू कैन लाइक 1 डैश क्लोर व्हिच इज नॉट टू बी नीडेड बिकॉज़ दैट्स 1। अभी ये क्लोरीन इट कैन बी एट एनीवेयर। यही क्लोरीन फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्लोरीन को इधर लिख लिए, फिर भी इसका नाम यही रहेगा। इसी क्लोरीन को अगर आप यू नो
इसको मिटा के अगर मैं क्लोरीन को इधर लिख लूं, फिर भी इसका नाम यही रहेगा, क्लोरोहेक्सेन। मतलब इधर कहीं पे भी लिखूं ना, चारों इधर भी लिख दूंगा, उसका नाम क्लोरोहेक्सेन ही रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और अगर उसका नाम मैंने क्लोर का इधर भी लिख दिया, अगर इधर लिख दिया इसके बदले, ये खाली है मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, जस्ट ट्राई टू डोंट फॉरगेट दैट। यहाँ पे भी लिख दिया फिर भी उसका नाम क्लोरोहेक्सेन है। तो यहाँ पे कहीं पे भी तीनों जगह पे रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी तीनों जगह पे रहे, उसका नाम क्लोरोहेक्सेन ही कहलाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ सपोज उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली जब अगर यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो नेमिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आल्दो यहाँ पे नेमिंग का कुछ इशू नहीं है, क्योंकि आप यू आर नॉट राइटिंग इवन 1 और 2। अब फॉर एग्जांपल नाउ द क्लोरीन कम्स हियर, नो देखो अभी इसका पोजीशन सेकंड कार्बन पे आ चुका है, देन द नेमिंग विल कम टू डैश क्लोरोहेक्सीन। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और यही क्लोरीन अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं 3 की जगह पे, इट विल कम 3 क्लोरोहेक्सीन, सेम थिंग। अच्छा अभी आप बोलेंगे अच्छा इस क्लोरीन को अगर सर इधर लिख देंगे तो फिर क्या नेम आएगा, फिर क्या 5 क्लोरोहेक्सीन हम नाम देंगे? बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? यहां पे क्या वायलेट हो रहा है? मैंने क्या बोला था, जो आपका ब्रांच है वो क्लोजेस्ट लोकेट के पास में आना चाहिए। जो ब्रांच शुड बी फ्रॉम वेयर द नंबर कम्स क्लोजर टू द ब्रांच। तो जो नंबर क्लोजर टू द ब्रांच आएगा वहां पर आपका नंबरिंग शुरू होगा। तो नंबरिंग क्लोजेस्ट किधर है? 1 2, अगर यहां पर है मेरा 1 2, ये तो 5 पे चला गया। और यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूंगा विच इज लाइक 1 2 3 4 5 6, मेरा क्लोज तो यहां पर आ गया 2। तो 2 इज क्लोज और 5 इज क्लोज। सो द सेकंड रूल इज लॉन्गेस्ट चेन में जो आपको नेमिंग शुरू करना है वो वहां से शुरू करना है जो क्लोजेस्ट ब्रांच क्लोजेस्ट नंबरिंग को हो, नंबर विच कम्स क्लोजर टू द ब्रांच। यहां से क्लोज 2 से आ रहा है तो इसलिए इसका नेम क्या होगा फिर 2 क्लोरोहेक्सेन। सो दिस इज हाउ यू डू, दिस इज द करेक्ट नेम। सो फर्स्ट क्लोजेस्ट ब्रांच होनी चाहिए, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट है, it has to be the closest to the branch. So that is the first rule of naming any hydrocarbon. Now there can be some different situations also where let's understand that also. अभी situation कैसा हो सकता है? No, the situation can be rub this on. So this all we saw. Now the situation can be आपको इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, देन क्या नेम देंगे उसको? यू नो दैट इज हाउ यू कैन टेक, और वी कैन टेक सिंपल एग्जांपल, क्लोरीन इधर भी है और क्लोरीन इधर भी है। सो और ऑब्वियसली नेमिंग कहां से शुरू करूंगा मैं बच्चों? नेमिंग माय नेमिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, बिकॉज यहां से क्लोज आएगा। तो मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6, नेमिंग यहां से यहां से क्लोज आ रहा है, तो इसलिए पहले नेमिंग कहां से शुरू होगा? ये 2 और 3 पे आया क्लोरीन, तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा कैसे बेटा? आई विल राइट इट एज, let me rub this also so that's clear. I hope. Now let's take example of again same hexane. Now जो क्लोरीन है that I will replace at 2 places. बाकी obviously बाकी हर जगह hydrogen is there. Now we will see the example if there are 2 chlorines, then how we will name it. So for example here I will see the chlorine is at 2 Cl and then the chlorine is at 3. बाकी जगह obviously it's hydrogen. Obviously naming अभी तो आपने देखा हमारा रूल क्या था, from where the number comes closer to the branch. जो नंबर क्लोजर टू द ब्रांच आएगा वहां से हमें नेमिंग करना। अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 1 2, यहाँ पे 2 पे आ रहा है ब्रांच, तो obviously my naming will be from here
1, 2, 3, 4, 5, because this naming is comes closer to the branch. And name will be here 2, comma 3 dash dichlorohexane. It will be 2, comma 3 dash dichlorohexane. This will be the name. Or अगर अभी for example if this chlorine is at here also, इसमें लोग chlorine इधर भी है, so the name will be 2, 3, 4. Now it is 3, so it becomes trichlorohexane. So that's how the name will keep going. और अभी अभी आप एक ही जगह पे, for example the chlorine instead of it's the chlorine इसी ब्रांच पे, सेकेंड ब्रांच पे, so the naming will be 2, 2, 4. Again same, it is try only, trichlorohexane. So this is how the naming is. Longest branch और ब्रांच को जो क्लोजेस्ट हमको मिलेगा नेमिंग लोकस्ट, उसको हम वहां पर ही नेमिंग, वहीं से नेमिंग, वहां से ही कार्बन को नेमिंग देना शुरू करते हैं. नाउ देयर कैन बी वन मोर सिचुएशन. Now the situation can be, now let's understand there is अभी यहाँ पे क्लोरीन भी है एंड ब्रोमीन इज ऑल्सो देयर, तो अभी कैसे नेमिंग करेंगे? सो नाउ वी विल नेम इट. ऑब्वियसली एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि हमको चेन जो क्लोजेस्ट है वहां से चूज करना है. तो ऑब्वियसली आई विल गो फ्रॉम हियर नेमिंग के लिए 1, 2, 3, 4. तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 लिखता हूं तो क्लोरीन 2 पे आया, ब्रोमीन 3 पे आया. तो आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 क्लोरो है ना, डैश 3 ब्रोमो एंड देन हेक्सेन, राइट? आप सोच रहे हो सर हाँ तो ये तो सिंपल है, अभी आपने बताया पहले ब्रांच का नाम लिख दो तो नेमिंग सिंपल हो जाएगा. 2 डैश क्लोरो डैश 3 डैश ब्रोमो और सीधा हेक्सेन. तो बट दिस इज नॉट द राइट वे नेमिंग इट, बिकॉज एक और रूल है जिसका नाम है अल्फाबेटिकल रूल. अल्फाबेटिकल रूल, इस रूल के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नेमिंग होगी, मतलब पहले क्लोरीन नहीं, पहले ब्रोमीन का नाम आएगा. सो इसका नाम कैसे बने? एक्चुअल करेक्ट नेम विल बी 3 ब्रोमो sorry 3 ब्रोमो dash 2 chloro hexane. This will be the correct name. Alphabetical. B comes first, then comes C. So this will go according to the alphabetical order. And let's take same example again. 6 carbon atoms. Now if you see, यहाँ पर भी bromine is here also and bromine is here also, chlorine is here also and chlorine is here also. Rest everywhere is hydrogen. Now how will you name it? Now इसका naming आप कहाँ से शुरू करेंगे? Now this will become 2, 3 dash dibromo dash 2, 3 dichlorohexane. See why we are hexane? Single bonds are there. That is the name hexane. So this is how this name will be given. So let's go to next. We'll discuss now our functional groups. First, let's take alcohol.
So like let's take pentanol 5, इधर में एक अल्कोहल लग गया, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, और बाकी हर जगह हाइड्रोजन. Now how will name it? Basically it's simple, pentanol. पेंटेन वन ऑल भी लिख सकते हैं, लेकिन बट यू कैन डायरेक्टली लाइक इट पेंटेनॉल. पेंटेन डैश वन ऑल भी लिख सकते हैं, बट दैट इज दिस सेम नेमिंग इज परफेक्ट. नाउ यहां तक तो ठीक है, बट द पॉइंट इज व्हाट हैपेंस इफ दिस ओ, जो हमने ओ लगाया है, इफ दिस ओ instead of it's at 1, if this O is at second carbon, अगर ये OH इधर लगा तो then there will be pent 2, उसका पोजीशन किधर है, और all. अभी ये कहां से आ रहा है नेमिंग, हमने अभी ऑलरेडी पीछे देखा था, दिस इज पेंटेनॉल अल्कोहल. ये कहां पे लगता है, ये हमारे प्रीफिक्स में लगता है. So here we will seeing, prefix में क्या लगता है, मिथ इत और अपना हेलोजेंस लगता है, और जो भी अगर कोई हमारा ब्रांच है वो लगता है, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांचेस, यहाँ पे लगता है, इसलिए यहाँ पे OL आया, दे गो इन प्रीफिक्स OL, अल्कोहल है OH, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे, इसलिए मैंने इसको पेंट टू ऑल. दिस इज हाउ द नेमिंग विल गो ऑन. Obviously अगर ये दोनों जगह पे होता, ऊपर भी नीचे भी, तो दिस विल कम पेंटेन 2, 2 diol. So this is how the naming will go on. So let's see, the next is about now we will add carboxylic acid. तो इसमें हम let's take 7 carbons. So these are around 7 carbons. यहाँ पर I will use OH. If you know, this is basically which functional group, ये देखो, ये functional group आपको पहचानना आना चाहिए. This is carboxylic acid. Carboxylic acid this is the functional group. और when you know, अरे हाँ इसका carboxylic acid, तो then the naming becomes easy. This is हेप्टोनाइक एसिड, बिकॉज वो पहले पे ही है, इसलिए देयर इज नो पॉइंट इन दैट, हेप्टोनाइक एसिड आ जाता है. बट अगर यही फॉर एग्जांपल इस टर्मिनल एंड इधर भी यहाँ लगा होता, OH डबल बॉन्ड O, सो नाउ ऑब्वियसली यू कैन नेम फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज यहाँ से भी शुरू होता है, यहाँ से भी शुरू होता है, तो यहाँ से भी नाम करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7. अगर और ये याद है कि हमेशा टर्मिनल एंड पे ही लगेगा. So this is the important. Why it will terminal end? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें 1 2 3 कार्बन को 3 स्टिक्स जाता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं 3 स्टिक्स जाता है, तो आपको बीच में कहीं लगा ही नहीं सकते इसको, क्योंकि ऑलरेडी 2 का ये इट्स ऑलरेडी 2 ends are somewhere has to be there. So that's the reason आप इसको यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O, और यहाँ इसको मैं सिंगल बॉन्ड OH नहीं लगा सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कितना 1 2 3 4 5 स्टिक्स हो गया कार्बन. सो इसलिए दैट्स द रीजन मैं आपको बता रहा था, स्टिक्स 4 ही स्टिक्स निकलता है कार्बन से, दैट इज इंपॉर्टेंट. इसलिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा टर्मिनल एंड पे ही लगेगा. हाँ अभी 2 टर्मिनल एंड पे है, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं. ये नेमिंग कैसे बनेगा इसका, हेप्टेनोइक, सॉरी हेप्टेनोइक हमने पहले लिख दिया था, इस हेप्टेन डैश 2,7 डाइक एसिड. हेप्टेन टेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है, और ई के बदले डाई हो गया, डायोइक आना चाहिए था, डाई लग गया, डाइक एसिड, हेप्टेनोइक डायोइक एसिड. सो ये ओनली टर्मिनल एंड पे लगता है. सिमिलरली जो एल्डिहाइड है, सेम एल्डिहाइड भी सेम वे में उसका भी नेमिंग होगा, सेम वे एल्डिहाइड का भी नेमिंग होगा. एंड देन द नेक्स्ट we will see, we'll check with alkanones basically. This is no ketones. Ketones का कैसे रहेगा, so 1 2 3 4 5 6. Now ketone can come anywhere. अगर आप देखेंगे ना, ketone come here also, because में सिर्फ डबल बॉन्ड ही,
सो कीटोन कैन कम एट टर्मिनल एंड ऑल्सो कैन कम एनीवेयर। तो अगर जैसे यहां पे लग जाएगा तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये हेप्ट बन जाएगा, हेप्ट टू आयन, हेप्ट टू 1। और अगर ये 2 इधर भी लगा है और इधर भी लगा है तो ये क्या आएगा फिर, हेप्ट टू 3 डाइन। सो ओ एन ही लग रहा है, अगर 2 है तो डाई लग रहा है, सिंपल सी बात है। सो दिस इज हाउ दिस नेमिंग विल टेक प्लेस। और obviously then the naming for bonds which is like अगर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब कैसे लगता है। so let's take one more example of these are 8 carbon here। तो obviously for example अगर कहीं पे भी लगा लो, 1 2 3 पे मैंने लगाया डबल बॉन्ड, obviously बाकी जगह क्या है, बाकी जगह obviously हाइड्रोजन एटम्स आ गए, नो नीड टू से दैट। अभी मैंने यहां पे लगाया, obviously नेमिंग कहां से शुरू करूंगा, यहां से इजी पड़ेगा ना, तो 1 2 3, क्योंकि 3 पे आ गया मेरा। और ये याद रखिए डबल बॉन्ड मतलब यहां से 3 नेमिंग वहां पे जो शुरू होता है वहां से वो डबल बॉन्ड काउंट किया जाता है। सो ये 1 2 3, हाँ तो ये 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड में काउंट करूंगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऑक्ट, ऑक्ट 3 ई एंड ई, क्यों ई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वाई एन ई हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू नेम इट। और अगर आपका ये डबल बॉन्ड इधर भी है तो ये क्या बनेगा, ये सेम बनेगा, ऑक्ट 1 3 डाई इन, दिस इज हाउ इट विल बिकम। और अगर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अभी ये सिंगल बॉन्ड में भी दिखा रहा हूं आपको, अगर आपके ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं मैं इसको, तो ये आएगा ऑक्ट 1 3 सेम बनेगा, 1 3 डाई वाइन, वाइन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज फॉर डबल। So I hope you understood this, how double or triple bond भी होगा तो how to name them. Then there is like अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था CH4, हम क्या बोलते हैं उसको, मीथेन। इसमें से अगर आप एक कार्बन माइनस कर दे, एक हाइड्रोजन एटम माइनस कर दे, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CH3, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। बेसिकली जो भी आपको एल्केन है उसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल हो जाता है। ये याद रखो, ये वाई एन ई से अलग है, ये वाई एल एस है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये मिथाइल बन जाता है, तो ये एक अलग ही ग्रुप होता है। इस ग्रुप को बेसिकली बोलते हैं, दिस इज अल्काइल ग्रुप। ये कहां से बनता है, ये एल्केन से जब माइनस करते हैं एक हाइड्रोजन को तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ट्रिपल बॉन्ड, दिस बिकम मिथाइल। वैसे अगर आप देखेंगे C2H6 जिसको हम इथेन बोलते हैं, क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अभी ब्रांचेस में आ सकते हैं, यू नो ब्रांचेस में इट विल बी कम। सो इट विल बिकम C2H5, it will become ethyl. Similarly, C3H7 will become propyl, and then C4H9 will become butyl. So this is all different groups. Basically ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, माइनस हाइड्रोजन। सो नाउ क्या होता है, जो आपका जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में नाउ दिस दे कैन आल्सो बी देयर इन द ब्रांचेस, तो इनका नेमिंग यू शुड नो हाउ टू नेम देम, दिस इज हाउ टू नेम देम। एंड ये इफेक्ट करता है जो चेन, जो आप लॉन्गेस्ट चेन को जो काउंट करते हैं ना, उधर ये इफेक्ट करता है। अगर कहीं ये हो तो दिस मीन देयर आर 2 कार्बन, सो इट विल आल्सो अफेक्ट इट। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स on basis of this. Let's take example of
6 कार्बन एटम्स। और अगर दिस CH3 इज हियर तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपका ब्रांच का लोकेशन बताना, आपको 2 है डैश, और कौन सा ब्रांच में मिथाइल है, सो ये क्या होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। हाँ समझ रहे हैं ब्रांच पे कैसे आएगा, इफ इट कम्स इन द ब्रांच देन हाउ यू हैव टू नेम देम, दिस इज हाउ यू बेसिकली नेम इट। देन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे C and then again C, this hexane 6 कार्बन एटम्स, और दूसरे पे आपको दिया है C2H5 और यहाँ पे दिया है आपको CH3। तो नो फर्स्ट आप इसको बोलेंगे अरे सर ये तो इजी, अभी आपने नेमिंग हमको सिखाया, C2H5 क्या है, C2H5 इथाइल है, तो सर मैं इसका नेमिंग लिख दूंगा 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। और अगर आप ऐसा लिखेंगे ना तो आपको अंडा मिलेगा, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं यहां से काउंट करूं कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, अभी यहां से करूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है, तो दैट दिस बिकम्स द लॉन्गेस्ट चेन। आप ये समझते हैं? तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया मेरा, क्योंकि इसमें 7 आ रहे हैं, जबकि अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट कर रहा हूं काउंट तो सिर्फ 6 ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल चूज 7 1। लेकिन ऑब्वियसली इसको लिखने का तरीका फिर आपको हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट लेट्स जस्ट राइट इट नॉर्मली, तो ये स्ट्रेट चेन मैं इसको लूंगा, तो नॉट टू गेट कंफ्यूज इसको आप रीराइट कर सकते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अभी ये C2 स्ट्रेट लाइन ये आ गया है इसमें, C2 C2 दिस इज हियर कम्स द C देन, एंड देन C। अभी यहां पर क्या था, यहां पे ऑब्वियसली आपको पता है ये क्या आता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, तो अभी इसको CH3 लिख सकते हो आप सीधा। और लेट्स नॉट गेट C, दिस इज अटैच्ड टू CH3 and this is again attached to C, then C. You see how this 7 carbon will go, this will go into 1 2 3 4 5 6 and यहाँ पे था और यहाँ पे CH3। इसको मैंने बस रिस्ट्रक्चर किया, अभी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ना इस कार्बन को था ना, ये अगर मैंने स्ट्रेट चेन लगा दिया तो ये CH3 C को कनेक्टेड था, ये जो मैंने ये है ये मैंने इधर लिख दिया, आर यू गेटिंग माय, कुछ मैंने अलग नहीं किया। सो दिस इज हाउ आई हैव डन, and then obviously then next is C, then CH3 same, then 3 carbon 3CC। this is how I am structuring, I will make it more simplified। मैं इसको क्या करूंगा, ये 2 कार्बन है ना, I will write 2 1 2, फिर then I will write C जिसके नीचे CH3 लगा हुआ है, then I will again write जिसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, then C then फिर 3 कार्बन। so this is how I am going to write। Obviously now it's going to affect my naming also, obviously these all are hydrogen atoms connected then again 4 sticks from so now this is my actual, जो मेरे को इसका नेमिंग करना है, मुझे इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग कैसे होगा, तो अभी कहां से शुरू करूंगा 1 2 3, नहीं तो 1 2 3 4, obviously I will start naming from here because मेरा जो closest branch 1 2 यहां से आ रहा है, obviously I will name 1 2 3 4 5 6 7, यहां से मैंने नेमिंग किया। जब एक बार आपने ये कर दिया then it's very easy to write the name। how to write name, 3 पर है और 4 पे है, तो क्या बन जाएगा, ये आएगा आपका नेम, ये बन जाएगा आपका नाम 3 4 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि अभी 7 कार्बन हो गए इसलिए हेप्टेन है। सो दिस इज हाउ द नेमिंग आल्सो अफेक्ट्स। देन अब अगर आपको यू नो दिस, अगर आपको यहाँ पर एक फ्लोरीन है, इसको भी कनेक्टेड ऑन फ्लोरीन है, इसको क्लोरीन कनेक्टेड है, इसको भी क्लोरीन कनेक्टेड, हाउ यू नेम दिस, सो इट्स सिंपलरी, कहां से D,
डाइफ्लोरो मीथेन. और if there is CH3, इसको हर जगह CH3 लगा हुआ है. Obviously longest chain will be this straight. इसका नाम क्या होगा? 2,2 dash dimethyl. This is dimethyl propane. Now if you see CH3, CH2, यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है. नो अभी आपका इसमें इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे आपका अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है और आपका सब्स्टिट्यूट क्लोरीन भी लगा हुआ है, विच इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप. तो इनका कैसे नेमिंग करेंगे? मैं कहां से शुरू करूं? यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली 1 पर है, लोवेस्ट लोकेंट 1 पे आता है, तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो 1 2 3 4, सो नेमिंग विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर. वन टू थ्री फोर. और नेमिंग फर्स्ट आपका क्या जाएगा? 4 कार्बन है आपके इसमें, 1 2 3 4. तो ऑब्वियसली व्हेन देयर आर 4 कार्बन्स तो आपका ब्यूट बन जाता है. दिस इज क्लियर. अभी बॉन्डिंग सिंगल है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए आपका एन आता है, एन आ जाता है. सिंपल. अगर एक बॉन्ड है तो एन, जैसा अगेन डबल है तो ई एन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन. और ये जो ई है, ये जो ई है इनका, ये फिर अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. याद रखो, ये अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. अल्कोहल है तो OL हो गया, एल्डिहाइड है तो AL हो जाता है, फिर आइक एसिड हो जाता है अगर कार्बोनिक एसिड है, यू नो लाइक दैट. और ONE हो जाता है अगर ये कीटोन ग्रुप है. सो दिस इज आई थिंक वेरी क्लियर. दिस E gets replaced. And then now if just to analyze this, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है वो एक सब प्रीफिक्स में जाता है, और OH आपका फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स में जाता है, which already we saw. और इसमें आपका if we just to analyze it, यहाँ पे इसका नाम आप क्या देंगे? 3-chloro ब्यूट. obviously you will write ब्यूट. अभी AN लिखेंगे और OL लिखेंगे. मैं इतना गैप क्यों दे रहा हूं? आई जस्ट वांट टू मेक सम पॉइंट. ये जो है दिस कम्स वन, दिस कम्स इन द वर्ड रूट, कितने कार्बन है उसके, और ये जो है दिस गोज इन एज ए सुफिक्स. तो ये बेसिकली प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है इसका, और ये इसका सुफिक्स है. अभी ये जो प्रीफिक्स है ये सब्स्टिट्यूएंट है, या जो आपके प्रीफिक्स में लगते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में, तो इसको बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं. सब्स्टिट्यूएंट्स ये पहले आता है इसमें, सब्स्टिट्यूएंट्स में. फिर दूसरा आता है नंबर ऑफ कार्बन्स. नेमिंग में बता रहा हूं मैं आपको. फिर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, फिर ये ANE है ना, ये है नेचर ऑफ बॉन्ड. मैं जस्ट बाइफिकेट कर रहा हूं सो कि यू गेट मच क्लियरिटी. ये जो लास्ट में जो सुफिक्स लगता है ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप में आता है. सो दिस इज होल काइंड ऑफ, कहते हैं ना इसको पूरा हमने इसका ऑपरेशन करके बता रहा हूं ये एक्चुअली किधर कौन सी चीज कहां पे रहती है, सो दैट कुछ भी आए यू शुड नॉट फॉरगेट इट. अभी लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर बाय चांस ऑब्वियसली मेरा लोएस्ट लोकेंट OH ही आया, तो ज्यादा प्रेफरेंस हमको हमेशा अल्कोहल को दिया जाता है इंस्टेड ऑफ लोकेंट को, इंस्टेड ऑफ Cl जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो बेसिकली अगर मेरा अल्कोहल दूसरे पे होता तो मैं आई वुड हैव स्टार्टेड नेम फ्रॉम दैट साइड आल्सो. So basically just remember alcohol is given much
preference. So obviously ये आपके 10th की ये syllabus में, but just to make you understand this very important concept, let's see now in hexagonal thing. जहां पर मैं लेता हूं, let me take this. देखो सेम है, इधर भी Cl को ऐड किया मैंने, इधर OH को ऐड किया, नथिंग डिफरेंस. और ऑब्वियसली जहां पर भी these are all carbon bonds. अगर इसको मैं ये मैंने बॉन्ड लाइन में लिखा है, इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर बेसिकली CH आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, क्योंकि दो कार्बन यहाँ से जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ से जुड़ेंगे, ये भी CH2 आएगा. दिस विल आल्सो कम CH2, दिस विल कम CH, CH2 और CH, समथिंग लाइक दैट हमने लिखा. तो अभी इसका नेमिंग कैसे रहेगा बेटा? इसका नेमिंग भी अगर आप देखेंगे ना, देयर इज अ पैटर्न, रैंडम नहीं है. इसका पहले ऑब्वियसली शुरू कहां से हो रहा है, नेमिंग में कहां से शुरू करूंगा, नेमिंग में यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा अल्कोहल से ही नेमिंग शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो ऑब्वियसली, लेकिन लिखेंगे किसको? 4 क्लोरो, पहले क्लोरो में आएगा, तो आएगा 4 क्लोरो. फिर प्लस किसका नाम दूंगा, क्या है ये, फिर उसमें आएगा साइक्लो है ये. फिर प्लस कितने हैं उसमें कार्बन, हेक्स. फिर कौन सा बॉन्ड है और फिर कौन सा ग्रुप है. तो अभी ये जो है, ये हमने ऑलरेडी देखा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसको सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेंज भी बोलते हैं. दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, नहीं तो इसको ब्रांच भी बोलते हैं, साइड चेन्स. जो हमने देखा था साइड चेन भी आता है ना वो, तो इनको इसको पहले नाम लिखते हैं, इसका पोजीशन पहले देते हैं, इनका नाम पहले लिखते हैं. उसके बाद आता है आपका ये सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी आता है. ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है. इसमें आपका आता है कि साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है. अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा. अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल. और हेक्स क्या है, बेसिकली ये आपका वर्ड रूट है. हेक्स बेसिकली आपका वर्ड रूट है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और ये क्या है आपका A9, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसके ऊपर ये सब चेंज होगा. डबल बॉन्ड है तो सिंगल एन, फिर नहीं तो ईन, नहीं तो आइन. और ऑब्वियसली फिर ये ई रिप्लेस हो जाता है आपका कौन सा ग्रुप है. यहाँ पे OL लिखा हमने क्योंकि अल्कोहल था, ये सुफिक्स लगता है, ये जो OL है, दिस इज बेसिकली फॉर फंक्शनल ग्रुप. ये इसको सेकेंडरी सुफिक्स बोलते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स. और इसमें प्राइमरी सुफिक्स ये है आपका ANE, ये प्राइमरी सुफिक्स है. So this is whole picture how we can name, analysis, how you name and कैसे करते हैं. No, same thing उसमें ही एग्जाम्पल आता है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल. अभी हमने देखा लॉन्गेस्ट चेन रूल, बट देयर आर सम, लेट्स टेक विद सिंपल एग्जांपल्स. CH3 है, then CH2 है, and here is CH3 again and CH3 again. तो अगर आप यहां पे देखेंगे, you have to choose the longest chain. Obviously, there is no doubt about it. दो हमारा ऑप्शन है, या तो मैं ऐसा जा सकता हूं, या तो मैं स्ट्रेट जा सकता हूं. तो obviously, if I go like this, तो only 4 carbons are available. If I go straight, then I am getting how many? 1 2 3 4 5 carbons. So basically I will choose, this will be my longest chain. So this is how you get it. And then there will be some examples like
स्ट्रेट चेन दिया रहेगा आपको CH3 CH2. आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हाउ टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज नेमिंग तो भी आप कर लेंगे, यू गॉट एवरीथिंग, नो हाउ टू नेम थिंग्स. अभी यहां पर अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर कौन सा लॉन्गेस्ट है, 1 2 3 4 5 6, इसको आप लंबा नेमिंग दे सकता हूं, नहीं तो स्ट्रेट चेन है ना, तो आप बोलेंगे सर ये दे देता हूं, नहीं, इसमें स्ट्रेट चेन ये जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगा. क्यों लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा, इसमें 6 आ रहे हैं, जबकि अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू काउंट व्हाट इज लॉन्गेस्ट चेन, so you don't have to get confused anywhere. Now let's take some more examples, like CH3 CH2 CH. Suppose this is the compound. तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट जाएंगे तो ये ज्यादा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन काउंट होगा नहीं. इसमें देखो अभी रूल्स, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू सम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा डबल बॉन्ड को. डबल बॉन्ड हैज टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन. ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको आपको मेन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा. तो भी आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसा कीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसा, इसको मतलब ऐसा कीजिए, नहीं तो इसको आप ऐसा कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा. तो लॉन्गेस्ट चेन जैसे आएगा वैसे आपको करना पड़ेगा. तो यहां से 1 2 3 4 5, अगर मैं यहां से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आई कैन गो फ्रॉम हियर ऑल्सो, आई कैन गो फ्रॉम हियर ऑल्सो, 1 2 3 4 5 6. Are you getting my point? So this will be my longest chain. So this will be my longest chain. This is my longest chain. इधर हमने कौन सा रूल फॉलो किया? There here rule is double bond has to be included. Double bond. Double bond has to be included in the main chain. दिस इज इंपॉर्टेंट. जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखा, भैया डबल बॉन्ड को तो आपको लेना ही पड़ेगा चेन के अंदर, वो मतलब राजा है, उसको आपको लेना ही पड़ेगा. और सेम थिंग होता है, आपको डबल बॉन्ड को ले, जैसे आपने अभी डबल बॉन्ड को लिया ना, वैसे ही आपको अल्कोहल ग्रुप को भी लेना ही पड़ेगा. जैसे अगर ये CH3 है, CH2 CH, CH2 CH2 CH3 और यहां पे OH है. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यू में से सर 1 2 3 4 5 ये ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, नहीं, यहां पे आपको अल्कोहल को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, इसलिए यहां का जो चेन है वो यहां से जाएगा. सो दिस इज वन मोर रूल व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. मेन चेन शुड ऑलवेज इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप. मेन चेन क्या होना चाहिए, मेन चेन, मेन जो आप चेन बना रहे हैं should include functional group. So these are some important rules which have to keep in name while naming. Naming तो भी easy है, आपको समझ गया अभी ब्यूट क्या है, अल्कोहल ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए, एंड उसका अल्फाबेटिकल रूल है, फिर उसका ब्रांचेस कहाँ पे क्या लिखना है वो भी हमने डिटेल में उसका लिटरली ऑपरेशन किया, बाइसेक्ट करके बताया मैंने वो कौन सा प्राइमरी सुफिक्स सेकेंडरी सुफिक्स कहाँ पे क्या लगता है. सेम थिंग अप्लाइज फॉर द स्ट्रेट चेन आल्सो. सो दीज आर सम रूल्स व्हिच हैज टू बी कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग, बिफोर गोइंग फॉर नेमिंग. So let's take more examples. Now
For example, now there is this CH3, CH, CH, CH. Here is CH2, CH3. This is CH2. CH3. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो आई कैन गो straight chain 1 2 3 4 5 6. Obviously this is 6, तो I will write directly here this is the longest chain. यहाँ पर हमको अगर आप देखेंगे यहाँ दो साइड चेंज बन रही, एक तो ये साइड चेन बन रही. फॉर एग्जाम्पल अगर you know here I can count from here also. This is 1 2 3 4 5 6. This is also side chain. तो ये करूंगा तो मेरे जो साइड चेन्स हैं वो दो सिंगल साइड चेन्स बन रही है. वन साइड चेन बन रहा है जिसके एक और एक है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो स्ट्रेट तो यहां पर दो साइड चेन्स बन रही है, वन एंड दिस इज 1 and 2. तो मैक्सिमम साइड चेन जहां पे बन रही है ना दैट विल बी द नंबर. यहां पर जो है दिस विल गो बिकॉज यहां पर दो साइड चेंजेस दो साइड चेन्स बन रही है. टू साइड चेन्स आर बिकमिंग. वन इज दिस एंड वन इज दिस. टू साइड चेन जहां पे बन रही है, देख रहे हैं ना यहाँ पे दो साइड चेन बन रही है. तो इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अगर मैं सेम अगर आप इसको लिखेंगे CH3 CH and CH3 CH and this is CH2 and CH3, this is CH2 CH3. अगर मैंने if I would have taken this, ये मैंने अगर ले लिया, if I would have taken this, तो यहां पर मुझे एक ही साइड चेन मिल रही थी. आप देख रहे हैं वन साइड चेन मिल रही थी मुझे. यहां पे मुझे दो साइड चेन मिल रही है, यहां पे मुझे वन साइड चेन मिल रही थी. तो ये दूसरा रूल है कि जो मैक्सिमम साइड चेन्स हैं वही मुझे सिलेक्ट करना है. मैक्सिमम साइड चेन. So you don't have to worry about these rules, but I just want just keep them in mind because आपके 10th में इतना टफ नहीं आने वाला, really much easy. Then ये तो आपने already देखा. This is lowest locant rule basically. For example, this is CH3, CH, CH2, CH2, CH3. और for example यहाँ पर मैंने CH3 लगाया. Obviously naming will start from 1 2 यहाँ से होगा. Why? Because जो ब्रांच है लोवेस्ट लोकेंट लोकेशन सबसे पहले जो क्लोजेस्ट ब्रांच पे आएगा, ब्रांच जहां पे निकलेगी वहां से हमको नेमिंग वहीं से प्रेफर करेंगे. तो यहाँ पर आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल. दिस इज हाउ द लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाइज टू. दिस इज ऑलरेडी वेरी सिंपल थिंग. देन कम्स लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल. ये तो लोवेस्ट लोकेंट रूल हो गया. नो देयर इज समथिंग नोन एज लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यहीं पर अगर आप देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आई विल एड वन मोर हियर CH3 एंड आई विल एड वन हियर. आई विल जस्ट इंक्रीज इट टू CH. one more bond. और नेमिंग में 6 तक कर लेता हूं. अभी अगर आप देखेंगे वन मोर आई एम एडिंग हियर CH3. अभी यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पर भी लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई होता है. देखो 1 यहां पे 2 आ रहा है, 3 4 5 6 लोवेस्ट 2 पे भी आ रहा है, यहां पे भी यहां से भी आ रहा है. तो कौन सा ये दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट. इसके लिए रूल आता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल. अभी आप करके देखिए, अगर आप ऊपर से करके देखेंगे तो अगर आप देखेंगे आपको क्या नंबर आएगा. जब पहले रेड वाले का करेंगे तो आपको आएगा 2 2 5. यहां से करेंगे तो आएगा 2 5 5. तो लोएस्ट मतलब यहां पे देखो लोएस्ट नंबर यहां पे है सेकंड. तो इसलिए
will go like this. So this is lowest locant set rule. So this is how you start naming. Now next, which is very important, for example one more compound I will take CH. Now use यहाँ पर double bond है second पे, and CH3 CH CH3, and this is also CH3 है. तो नो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यू में फील अरे सर अभी यहाँ पर कैसे क्या लगेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लोएस्ट लुकिंग रूल लगाएंगे तो यहां से शुरू कर सकते हैं हम लोग. जस्ट अगेन आई विल नंबर. देखो मैं यहां 1 2 3 4 5 और दूसरा नंबरिंग मैं कर रहा हूं लेफ्ट से राइट. 1 2 3 4 5. आप बोलेंगे सर ये तो करने की जरूरत नहीं, तो सिंपल है. ऑब्वियसली यहां पर लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से यहां पर मिथाइल है, यहां पे तो इधर लगेगा 1 2 यहां से शुरू होगा. नहीं, ये अभी क्या रूल होता है बेटा, डबल बॉन्ड इज जो प्रेफरेंस है वो ग्रेटर देन होता है साइड चेन से. दिस इज जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जहां पर डबल बॉन्ड लगेगा उसका प्रेफरेंस ग्रेटर देन होता है साइड चेन से. इसलिए नेमिंग इसका यहां से होगा. क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है. समझ रहे हैं? तो डबल बॉन्ड यहां से शुरू होगा. जो डबल बॉन्ड क्लोज आएगा, अगर डबल बॉन्ड यहां से क्लोज आता है, यहां डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है लेकिन यहां से 2 पे आ रहा है, तो इसलिए मैं इसका नेमिंग यहां से होगा. सो दिस इज फॉर डबल बॉन्ड प्रेफरेंस गोज हायर देन द साइड चेन्स. सेम में रूल अगर ये यहां पर 2 पे है तो फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, फिर भी आपको याद रखो डबल बॉन्ड का ही ज्यादा प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसलिए ये भी यहीं से शुरू होगा. और दूसरा एक रूल है जो फंक्शनल ग्रुप अगर लगाओ तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंसेस ज्यादा जाता है डबल बॉन्ड से, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को पहले आपको इंक्लूड करना है. वो लोवेस्ट लोकेंट पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है. तो दीज आर सम रूल्स. और अगर आपका COOH है तो ये आपको मालूम है कि हमेशा टर्मिनल पॉइंट पे रहना चाहिए, तो ये हमेशा एंड पॉइंट इस, तो जो आपका लॉन्गेस्ट मेन चेन है ये उसके टर्मिनल एंड पे होना ही चाहिए. सो दीज आर सम फ्यू रूल्स व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड while writing. like फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 होगा, CH2 होगा, CH होगा, CH2 होगा और CH3 होगा. तो अगर ये यहां पर होगा ना COOH, तो मेरा पॉइंट वही है कि ये हमने ऑलरेडी देखा ये टर्मिनल एंड पे ही रहता है हमेशा, तो ये आपका चेन ऐसा बनेगा बिकॉज दिस हैज टू बी एट द टर्मिनल एंड. So this is all because this carboxylic acid which always are at the terminal end. So basically this is all about your different naming के हिसाब से मैंने देखा. alphabetical order also we saw how alphabetical order affects, so that's also very important. and lowest locant वो भी हमने देखा. So I almost try to cover everything. So please write down all detailed notes जितना भी मैंने पढ़ा है, and you all write all examples. And once you are done with homework, we'll take more examples जहाँ पे हम again will try to discuss them and try to clarify our more naming. जितना हम ज्यादा naming करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा practice करेंगे, उतना ज्यादा you will feel this IUPAC naming very easy. But obviously I told you maximum rule which more than for your 10th standard, but still just keep in mind all these names will help you in naming any कुछ भी कोई भी कितना भी लंबा चेन हो, you will be able to name if you keep all these rules in your mind. So please इसका नाम है hashtag IUPAC naming. This homework has to hashtag IPUAC naming. And please write all detailed notes whatever I have taught, and write all those examples also. And then once you have submitted this, then we will again see more examples to it. Vande Mataram. Hare Krishna. Thank you.